of the Lord is to be praised. Can you shout a hallelujah? Yay. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Saved and sanctified I am, and all my sins are washed away. I've been redeemed. Can you sing it with us? I've been redeemed by the blood of the Lamb. Oh, I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Saved and sanctified I am, and all my sins are washed away. I've been redeemed. Whoa! And there's much that happened after the cross, and we sing it like this. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I've been to the river and I got baptized. All my sins are washed away. I've been redeemed. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. All my sins are washed away. I've been redeemed. When God gave His Son on the cross, He gave His best. But when He gave His Holy Spirit, He gave His all. And we are so blessed for the Holy Spirit. Can you sing this verse with us this evening? My Lord and I, we got so close. My Lord and I, we got so close. My Lord and I, we got so close. He baptized me with the Holy Ghost, and all my sins are washed away. I've been redeemed. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Oh, I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Saved and sanctified I am. All my sins are washed away. I've been redeemed. And we can say to Jesus this evening that we love Him. Amen. Can you say, I love Jesus? I love Jesus. And yes, I do love Him. I love Jesus. Yes, I do. I love Jesus. How about you? I love Jesus. Yes, I do. And I love Jesus. How about you? I love Jesus. I love Jesus. Yes, I do. Yes, I do. Oh, I love Jesus. Jesus. How about you? How about you? Oh, I love Jesus, yes I do. And I love Jesus, how about you? I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Saved and sanctified I am. All my sins are washed away. I've been redeemed. All my sins are washed away. I've been redeemed. Every one of them. And all my sins are washed away. I've been redeemed. Hallelujah and praise the Lord. Our God is eternal God, amen. His name stands forever and ever, and that's why we sing Hai Javeda Yeshu Masiha, Hai Javeda. All the glory and honor to that one name, that is Jesus. Can you join us? Hai Javeda Yeshu Masiha, Hai Javeda Yeshu Masiha, Hai Javeda Yeshu Masiha, Hai Javeda Yeshu Masiha. Once again,
है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओहो है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओहो है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। राजाओं का राजा तू है, प्रभुओं का प्रभु तू है। He's the King of Kings. राजाओं का राजा तू है, प्रभुओं का प्रभु तू है। राजाओं का राजा तू है, प्रभुओं का प्रभु तू है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओहो है जावेदा यीशु मसीहा, 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 है जावेदा यीशु मसीहा। With your hands lifted, hallelujah, hallelujah। सब मिल गाए hallelujah, he's worthy to be praised, amen। हालेलुया हालेलुया सब मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया सब मिल गाए हालेलुया। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। One last time, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। We praise you, Jesus. We lift your name. प्रभु पवित्र आराधना करते हैं तेरी, हम आराधना करते हैं। विश्वास से सच्चे मन से, विश्वास से सच्चे मन से तेरी
सबके शिरोमणि महिमा तेरी हो सबकी शिरोमणि आराधना करते आराधना करते हैं तेरी हम आराधना करते हैं अद्भुत दाता शांति शासक आराधना करते हैं अद्भुत दाता शांति शासक आराधना करते हैं शाश्वतता युग युग में तू ईश्वर शाश्वत पिता युग युग में तू ईश्वर आराधना करते आराधना करते हैं तेरी हम आराधना करते यीशु मसीहा प्रभु पवित्र आत्मा यीशु मसीहा प्रभु पवित्र आत्मा आराधना करते हैं तेरी हम आराधना करते हैं तेरी हम आराधना करते हैं तेरी हम Greetings in the name of the Lord Jesus. यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं। Once again this morning, फिर एक बार इस सुबह it's nice to be in your house, आपके घर में आकर अच्छा लग रहा है sharing God's word. कि परमेश्वर के वचन से बात करने। I'm sure मुझे आशा है week after week, हर सप्ताह के बाद एक नया God is सप्ताह blessing you with His word. परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है उसके वचन से। And I pray that all of your houses और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके हर एक घर may be blessed abundantly. वो बहुतायत से आशीषित हो। These are the days ये वो दिन है we need to pray, हमें प्रार्थना करनी है, spend time in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है and God will surely bless you. और परमेश्वर सच में हमें आशीषित करेगा। I want to share with you, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। this morning I want to go for little teaching. आज सुबह मैं थोड़ा सा सिखाने के इस विषय से जाने वाला हूँ। I want to share with you मैं आपसे बात करूंगा in such a time that we are going through, कि इस ऐसे समय से जिससे हम जा रहे हैं what do we need to do? कि हमें क्या करना है। Friend, we need to pray. हमें प्रार्थना तो करनी है। These are the time ये वो दिन है that we can see that our city has become hotspot for coronavirus. कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा शहर है वो केंद्र स्थान बना है कोरोना वायरस के लिए And we need to pray. और हमें प्रार्थना करनी है And we need to come before और God. हमें परमेश्वर के आगे आना है। We need to ask God for His mercy. हमें परमेश्वर की दया की मांग करनी है। We need to spend time in His presence. हमें उसकी उपस्थिति में समय बिताना है। Praise God for all the preaching. सारे प्रचार के लिए परमेश्वर को These धन्यवाद days हो। more than message, we need messenger. आज प्रचार से ज्यादा हमें संदेश पहुंचाने वाले उसकी जरूरत We है। need to bring God down. हमें परमेश्वर को नीचे उतार बुलाना है। God is the answer. परमेश्वर वो जवाब है। And let me tell you, my friend, मुझे दोस्तों आपसे कहने दो, I've been seeing all around. मैं सब जगह पर देख रहा हूँ Let us not be bound into these things of the world. कि हम जगत की बातों से बंधे ना जाए, Let us not try to lift up ourselves in such a time. कि ऐसे समय में हम अपने आप को ना उठाए ऊंचा। My friend, मेरे दोस्तों, lift up Jesus लेकिन केवल यीशु मसीह को and उठाओ pray. और प्रार्थना When you करो look around what is happening, कि जब सब जगह पर देखते हो कि क्या हो रहा है, it's frightening in the lives of people and homes. कि लोगों के घरों में और जीवन में देखकर काफी डरावना लगता है।
Thank God for our houses, परमेश्वर को धन्यवाद हमारे सबके घरों के that लिए God has protected us, कि परमेश्वर ने हमें संरक्षण दिया है, God has blessed us. परमेश्वर ने हमें आशीषित But किया when you है। see outside लेकिन जब हम बाहर देखते what हैं people are going through, कि जिसमें से लोग जा रहे हैं, let us not forget. कि हम ये कभी भूले नहीं We are the answer because Jesus has kept you and me as an answer. कि हम वो जवाब है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें उस जवाब के तहत रखा We है। need to pray for everybody. हमें सबके लिए प्रार्थना करनी When है outside कि जब बाहर the world was getting destroyed, कि जहाँ पर जगत का नाश हो रहा in है, the ark Noah and his family were praying. नूह के जहाज में नूह उसका परिवार प्रार्थना कर रहा Where था। outside जहाँ बाहर you see all the people were getting destroyed in Egypt. कि हम देख सकते हैं कि मिस्र में सारे लोगों का नाश हो रहा था। Israel under the blood of the lamb इसराइल उस मेमने के लहू के अंदर in the house अपने घरों में were eating flesh and the blood of the lamb. वो मेमने का जो मांस है और लहू है उसका सेवन कर रहे They are थे। applying the blood वो उस लहू को लगा रहे and थे eating the flesh. और वो मांस खा रहे थे And they were not enjoying sitting inside. और वो घर में बैठकर कोई उत्सव नहीं मना They were रहे not थे sitting and watching all that YouTube and this movie and that movie. और वो घर में बैठकर YouTube और ये मूवी और वो मूवी नहीं देख Neither they रहे were playing with the mobile inside. थे या फिर मोबाइल को लेकर घर में बैठकर खेल नहीं रहे थे Inside they were concerned about what was happening outside. वो। अंदर बैठकर उन्हें चिंता थी कि बाहर क्या हो रहा है। God's grace was upon them. परमेश्वर का जो कृपा है वो उनके ऊपर Let थी। me tell you, my friend, मेरे दोस्तों आपसे कहता हूँ we मैं, need to come more closer to God. हमें परमेश्वर के और नजदीक We जाना need to है, pray. हमें प्रार्थना करनी We है, need to spend time. हमें और ज्यादा समय बिताना है। When you look around, जब हम यहाँ वहाँ I देखते don't हैं, think any other time मुझे नहीं लगता कि कोई और समय ऐसा that है we need to pray more than what is today. कि जितना अब जरूरत है हमें कि अब इस समय में प्रार्थना ज्यादा Spend time करनी in है fasting and praying. और उपवास और प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना And I'm है। sure God will bless you. और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको आशीष Today I want to करेगा। share with you आज मैं आपसे बात करना from चाहता book of हूँ Hebrews 12th chapter इब्रानियों इसका 12वां अध्याय and 24th verse. और 24वां वचन। Let's read book of Hebrews 12th chapter and 24th verse. 12वां अध्याय और 24वां वचन हम उसको पढ़ेंगे। And to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel. इब्रानियों उसका 12वां अध्याय 24वां वचन जो कहता है कि और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। Hallelujah. Let us pray. आओ हम प्रार्थना करें। Father, once again in Jesus' name, पिता फिर एक बार यीशु मसीह के we नाम thank से you for your presence. हम आपके उपस्थिति के लिए And धन्यवाद we देते pray, हैं। Lord, अब- that this morning as you come at your feet, और पिता प्रार्थना करते जैसे आज सुबह आपके चरणों के पास that आते you हुए would bless every person कि आप हर एक व्यक्ति को प्रभु आशीषित and bless करोगे this morning service और आज सुबह की सभा को आशीषित and take this करोगे message into your hand और इस प्रचार को आपने हाथों में and let लोगे your Holy Spirit और आपका पवित्र आत्मा make this word alive in our life. वो इस वचन को हमारे जीवन में जीवित करे। And Lord, we pray, और प्रभु हम प्रार्थना let your करते हैं mind may be revealed कि प्रभु आपका जो मन है वो हमारे सामने प्रकट हो as you जाए, commit everything at your feet. जैसे सब कुछ आपके चरणों में सौंपते Bless हैं। every person. सबको आशीषित In करना Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। In this chapter, इस अध्याय में book of Hebrews 12th chapter and 24th verse, इब्रानियों के 12वां अध्याय और 24वें वचन में this is a wonderful word. बहुत ही अद्भुत शब्द है यहाँ And to पर। Jesus, the mediator of the new covenant. और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु मसीह, Jesus is the mediator. यीशु मसीह वो मध्यस्थ है And the Bible says, और बाइबल कहती है and the Jesus, the mediator of the new covenant, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु and to the blood of sprinkling, और छिड़काव के उस लहू के पास that speaketh better things than that of Abel. जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। Bible says the blood speaketh. बाइबल कहती है कि लहू बातें करता है। In this chapter, Bible says, इस अध्याय में बाइबल कहती the है blood of Jesus speaketh better than the blood of Abel. कि यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से ज्यादा उत्तम बातें करता Now है। there are two has been compared. आप दोनों की बीच में तुलना की गई One है। has been compared the blood of Abel and the another one is compared blood of Jesus. एक है यीशु मसीह का लहू, दूसरा है हाबिल का लहू। And he said the blood of Jesus speaketh better और कहा है कि यीशु मसीह का लहू उत्तम बातें करता है than the blood of Abel. हाबिल के लहू से। Let us see what happened. हम देखते हैं कि क्या हुआ When था you see the life of Abel, जब हम हाबिल के जीवन को देखते Bible हैं। says बाइबल कहती the है Cain and Abel, they were the sons of Adam and Eve. कि हम देख सकते हैं कि जो कैन और हाबिल है वो आदम और हवा के पुत्र थे And they brought the
offering to और God, वो परमेश्वर के sacrifice to God. परमेश्वर के पास वो अर्पण लेकर आए, And God accepted the Abel sacrifice and God rejected the Cain sacrifice. और परमेश्वर ने हाबिल के अर्पण को स्वीकारा लेकिन कैन के अर्पण को नकार दिया, And Cain's countenance was fallen. और कैन जो है वो काफी निराश हुआ उससे, And jealousy came inside him. और उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हो And he गई, tried to kill Abel. और उसने हाबिल को जान से मार देने का तय किया। And the Bible says और बाइबल कहती he है killed Abel उसने अपने भाई हाबिल को मार दिया and hid Abel somewhere. और वो कहीं तो छुपा दिया उसे, And God came to them. और परमेश्वर उसके पास आया And God फिर। says, और परमेश्वर ने कहा, Cain, Cain, कैन कैन where is thy brother? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? This is the second question you can see. ये दूसरा सवाल है जो हम देख सकते हैं। First question, सबसे पहला सवाल God said to Adam, परमेश्वर ने आदम से किया था, Adam, Adam, आदम आदम where are you? तू कहाँ पर है? Number two, दूसरी बात, this question, ये सवाल God is asking Cain, परमेश्वर कैन से पूछता where है, is your brother? तेरा भाई कहाँ पर है? My friend, मेरे दोस्तों, these two questions every person has to answer before God. ये दो सवाल परमेश्वर के सामने जाकर हर एक को जवाब Today देना है where we इसका। are standing before God, आज हम परमेश्वर के सामने कहाँ खड़े हैं? where are our brothers? आज हमारे भाई कहाँ पर We are है? accountable before God. हम परमेश्वर के सामने इस चीज का हिसाबदार है। हम Where are our brothers? हमारे भाई कहाँ पर You know, है? 10 commandments is divided in two. 10 जो आज्ञा है उसका 2 इसमें हिस्सा किया जाता One है। is for God and another for brother. एक जो है वो परमेश्वर के लिए है, दूसरे जो अपने भाइयों के लिए। Loving God and loving your brother. एक है परमेश्वर से प्रेम करना, दूसरा अपने भाइयों से प्रेम And you रखना। can see here और हम यहाँ देख सकते that हैं God asked Cain, और परमेश्वर ने कैन से पूछा where is thy brother? कि तेरा भाई कहाँ पर And the है? Cain says, और कैन ने कहा, am I my brother's keeper? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? My friend, how many of us are trying to go ahead without taking our brothers? कितने लोग हैं हम में से ऐसे जो अपने भाइयों को साथ में ला लेकर ऐसे आगे बढ़ना चाहते हैं? My friend, let me tell you, मेरे दोस्तों आपसे कहता हूँ मैं, God wants us to care for our brothers. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने भाइयों की देख रेख करें। And here, और यहाँ when God asked him, जब परमेश्वर ने ये पूछा उससे and he said, am I my brother's keeper? और उसने जब कहा कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ, And God said और परमेश्वर कहता है that the blood of your brother कि तेरे भाई का जो लहू है is crying from the ground. उस जमीन से वो पुकार रहा है। The blood of your brother तेरे भाई का जो लहू है crying from the ground. वो जमीन से पुकार The रहा blood है। of Abel जो हबेल का खून was है crying from the वो ground. चिल्ला रहा है उस जमीन से। Bible says blood has life. बाइबल कहती है कि लहू में जीवन है। When you read book of Leviticus 23rd chapter, Leviticus 17th chapter 11th verse, Bible says the blood has the life. जब लेवी उसका 17वां अध्याय और 11वां वचन पढ़ते तो वहां पर बाइबल कहती है कि लहू में जीवन है। Bible says blood has the life. बाइबल कहती है कि लहू में जीवन है And blood speaketh. और लहू बात करता है। And here और यहाँ the blood from the ground was crying. उस जमीन से वो लहू चिल्ला रहा था। And he said, और वो कहता है, God said to Abel, परमेश्वर ने कैन से कहा that I see कि मैं देखता हूँ that the blood of your brother is crying from the ground. कि तेरे भाई का जो लहू है वो जमीन से चिल्ला Now रहा I है। want to tell you, अब मैं आपसे कहना चाहता the हूँ blood of Jesus and blood of Abel. कि यीशु मसीह का लहू और हबेल का लहू, Bible is compared these two people. बाइबल इन दोनों लोगों की तुलना करता है। One is Abel and one is Jesus. एक है हबेल और दूसरा है यीशु And I मसीह। want to tell you, और मैं आपसे कहता हूँ Jesus also was crucified. कि यीशु मसीह को भी क्रूसित कर दिया His गया। blood also was shed. यीशु मसीह का लहू भी बहाया गया। Jesus' brothers crucified him. यीशु मसीह के भाइयों ने यीशु मसीह को क्रूसित And किया his blood was shed. और उनका लहू बहाया And गया। today blood speaketh. और आज लहू बात करता And book है। of Hebrews 12th chapter 24th verse says और इब्रानियों का 12वां अध्याय 24वां वचन that कहता blood है of Jesus speaketh better. कि यीशु मसीह का लहू बेहतर और उत्तम बातें Now करता what है। is better than the Abel? और हाबिल से क्या बेहतर है ये? Number first, सबसे पहली when बात, Abel जब हाबिल died, वो मरा, he was not willing. वो उसकी तैयारी नहीं थी, वो तैयार नहीं था। Unwillingly, he was killed. उसकी मर्जी के बगैर वो मर गया। Number two, दूसरी बात, his blood was shed on the ground. उसका जो लहू है वो जमीन पर बहाया And गया। number three, और तीसरी बात, his blood was crying out for revenge. उसका जो लहू है वो बदले की मांग कर रहा था। Again, I tell you, फिर एक बार कहता हूँ मैं the blood आपसे, of Abel, हाबिल का लहू, the Abel was not willing to die. हाबिल मरने के लिए तैयार नहीं था। Number two, दूसरी बात, his blood was shed on the ground. उसका जो लहू है वो जमीन पर बहाया And गया। number three, और तीसरी his बात, blood cried उसका लहू पुकार रहा for था revenge. ताकि उसे बदला मिले। But you can find out, लेकिन हम देख सकते हैं Jesus was willing to die. कि यीशु मसीह मरने के लिए तैयार थे। Number two, दूसरी his बात, blood was sprinkled on the mercy seat. वो उनका जो लहू है वो दयासन पर छिड़का गया। And number three, और तीसरी the बात, blood of Jesus यीशु मसीह का लहू
does not cry for revenge. वो पुकार नहीं करता बदले के लिए, Blood of Jesus cries for forgiveness. लेकिन यीशु मसीह का लहू क्षमा और माफी के लिए पुकारता Blood है। of Jesus speaks of forgiveness. यीशु मसीह का लहू बात करता है क्षमा के लिए। The Cain कैन जो है, killed Abel. कैन ने हबील को मार दिया, Abel was not willing, हबील तैयार नहीं था, and Jesus died willingly. लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर देखते कि खुद की इच्छा से मरे। The blood of Abel हम यहाँ पर was देखते हैं poured out on the ground, हबील का जो लहू है वो जमीन पर डाला गया, and blood of Jesus और यीशु मसीह का लहू was sprinkled on the mercy seat. वो दयासन पर छिड़का गया। Blood of Abel हबील का लहू is crying वो पुकार रहा है for revenge, बदले के लिए, and blood of और Jesus यीशु मसीह का लहू is praying, वो प्रार्थना करता Father, है forgive them. कि पिता इन्हें माफ करना। These are two comparisons, ये दो तुलनाएं मैंने and बताई Bible है, says these two comparisons. और बाइबल ये दो तुलनाओं के विषय में बात And करता today, है। blood of Jesus और आज यीशु मसीह का is लहू praying for forgiveness. वो प्रार्थना करता है माफी के लिए। Bible says blood of Jesus was sprinkled 7 times. और बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह का लहू 7 बार छिड़का गया। 7 times the blood of Jesus was sprinkled on the mercy seat. 7 बार और दयासन पर यीशु मसीह का लहू छिड़का गया, And the 7 places और 7 जगहों पर that Jesus had wounds in his body, कि the जहाँ- blood came out of his body. कि जहाँ पर यीशु मसीह के शरीर पर घाव हुए, जहाँ से लहू बाहर And निकला, he paid the price for you and me. और यीशु मसीह ने तुम्हारे और मेरे लिए वो कीमत चुकाई। And today we need to receive the blood. और आज हमें उस लहू को स्वीकार और ग्रहण Jesus करना है। said यीशु मसीह ने In कहा book of John, यूहन्ना की किताब में, I think it's book of John, 6 chapter 53 to 57. यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय Unless 53 you eat my flesh and drink my blood, कि जब तक तुम मेरे देह को नहीं खाते और मेरे लहू को नहीं you पीते, have no life in me. तुम्हारे पास कोई मेरा जीवन नहीं Today है। we need to have the life of God. आज हमारे पास परमेश्वर का जीवन होना How do we चाहिए have life of कि God? परमेश्वर का जीवन हम कैसे How प्राप्त do we करें, overcome? कैसे हम विजयी हो। Jesus has paid the कि price. यीशु मसीह ने वो कीमत He चुकाई has है, shed the blood. उसने वो लहू He बहाया has है, given us the token. उसने वो चिन्ह दिया है If we cannot apply the token properly, कि अगर उस चिन्ह को लेकर हम वो लहू सही नहीं लगा the सकते, blood will not be benefited to us. तो फिर लहू लाभदायक नहीं होगा हमारे Bible लिए। says बाइबल कहती है that entire Egypt, कि पूरा मिस्र, where there was death, कि जहाँ पर पूरी तरह से मौत फैली थी, only केवल Israel house was spared. इस्राएल के घराने थे जहाँ पर उनको बख्शा गया, And token was given the blood of the lamb. और मेमने का लहू वो एक चिन्ह के रूप में दिया गया Only था। that token could protect their home. केवल वो चिन्ह था जो उनके घर को महफूज रखता। In time of Rahab, और रेहाब के समय में when you find those spy came to जब Rahab, हम देख सकते हैं वो जासूस उसके घर गए थे, for whole Jericho was destroyed, कि पूरे यरीहो का नाश हो गया, and they said और उन्होंने कहा that tie this rope, कि वो लाल रंग का कपड़ा तू बांध वहाँ, the scarlet rope on your window. वो अपने खिड़की पर उस लाल रंग का कपड़ा तू And बांध। when you tie that scarlet rope on your window and looking at that scarlet rope, you will be saved. कि उस लाल रंग के कपड़े को तेरे खिड़की के ऊपर बांध कर उसको देख कर तू बच जाएगी, We will not attack that. कि हम उस घर पर कभी हल्ला And नहीं take करेंगे। all your family members inside that home, because unless they come inside that token, their life will not be spared. कि तेरे जितने परिवार के सदस्य उन सबको तेरे घर में उस लाल रंग के कपड़े के अंदर तू ले लेना, क्योंकि उस कपड़े के वजह से, उस चिन्ह के वजह से उनको सुरक्षिता मिलेगी। For Israel, the token was given the blood कि इस्राएल के लिए वो चिन्ह दिया गया था, वो जो लहू था, upon the door. वो दरवाजे पर लहू For लगाना, Rahab, the token was given that red color scarlet robe. और वो रहाब के लिए वो लाल रंग का कपड़ा वो चिन्ह के तौर पर दिया And गया today, था। as a believer, Bible says the blood of Jesus is given token for us for the protection in this dark world. और आज विश्वासी होने के नाते परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह का लहू दिया गया है एक चिन्ह के तौर पर, ताकि हमें सुरक्षिता मिले। If we are not careful about the blood of Jesus, कि अगर हम सावधान नहीं है यीशु मसीह के लहू को लेकर, we will miss the blessings of God. हम परमेश्वर के आशीषों को गवा सकते हैं। When Israel applied the blood, जब इस्राएल ने उस लहू को लगाया, inside they were waiting अंदर वो इंतजार कर रहे and they थे were careful, और वो सावधान थे looking at the blood, कि उस लहू को देखकर that if that blood is wiped away, कि अगर वो लहू मिट जाता है वहां if the से, blood goes off, कि अगर लहू ऐसे निकल जाता है वैसे, they can get into trouble. शायद वो कोई मुसीबत में आ जाएंगे।
Even this lady, कि ये वो स्त्री भी, this lady was careful about the scarlet. वो जो औरत थी वो काफी सावधान थी उस लाल रंग She के was कपड़े को watching a लेकर, scarlet. वो उस कपड़े को देख रही थी That trade, कि वो लाल that रंग was so important for her. कि उसके लिए इतना जरूरी था That वो only scarlet color robe can save her whole family. कि वो लाल रंग का कपड़ा ही केवल उसके पूरे घराने को सुरक्षित रख That सकता was the है। token that was given. वो एक चिन्ह था जो उसको दिया गया And she था had to gather all the family inside that window. और उसको उस खिड़की के अंदर अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करना They पड़ा have to be careful कि उन्हें सावधान रहना that है that robe should not forget, कि वो जो लाल कपड़ा है वो कभी गिरना या भूल ना should not fall away. कि कहीं से गिर नहीं जाना Maybe चाहिए should वो, not lose the color. या फिर उसका रंग नहीं उड़ना My चाहिए। friend, day and night, मेरे दोस्तों दिन और रात, maybe 5 times a day, शायद दिन में 5 बार, maybe midnight, शायद बीच she रात was में watching at it. वो उसको देख रही थी। Exact the way today, वैसे ही the आज blood of Jesus given to you and यीशु me. मसीह का लहू तुम्हें और Blood मुझे of दिया Jesus गया। is only protection in these last days. आज ये अंत के दिनों में केवल यीशु मसीह का लहू ही From संरक्षण all है। the side troubles are coming. हर एक दिशाओं से सारे One संकट आ after रहे हैं, another trouble. एक के बाद एक नया संकट, One try to go the second. एक खत्म नहीं हुआ तो दूसरा। But let me tell you, my friend, लेकिन मुझे आपको बताने दो, God has not chosen you that you may perish. परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना नहीं कि आपका नाश हो। Jesus said, I have come that you may have life and life abundant. यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया इसलिए ताकि आपको विपुल और विपुलता का जीवन Jesus मिले। wants you to have the life abundant. यीशु मसीह चाहता है कि आपको जीवन मिले और विपुलता का जीवन Jesus मिले। has not saved you and left you in this world to die. परमेश्वर ने यीशु मसीह ने आपको उद्धार इसलिए दिया नहीं ताकि आपका जगत में नाश He हो। has given you well protection. यीशु मसीह ने आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखा He है। is the Lord of your life. वो प्रभु है आपके जीवन का, He will not forsake you. वो आपको कभी त्यागेगा In नहीं। this time, इस ऐसे घड़ी में, in this virus, ये सारे वायरस के in हालत this में, trouble, ये मुसीबत में, in this storm, ये सारे तूफान in में, this lockdown, ये लॉकडाउन में, God will not forsake you. परमेश्वर कभी तुमको त्यागेगा नहीं। God will not leave you. परमेश्वर कभी छोड़ेगा He नहीं। said, I will never leave you orphan. वो कहता है कि तुझे कभी अनाथ नहीं He छोड़ूंगा, said, my hand is holding you. कि मेरा हाथ से मैंने तुझे पकड़ रखा I है, will lead you. मैं तुझे I चलाऊंगा, will bless you. मैं तुझे आशीषित Fear करूंगा। not. डर मत, Fear not. डर मत, I have overcome. विजयवंत हो जा। God will not leave you. परमेश्वर कभी छोड़ेगा God नहीं, will not forsake you. परमेश्वर कभी त्यागेगा No नहीं। matter which corner of the house, चाहे घर के किसी कोने में क्यों ना no matter सही, which place you are staying today, कौन सी भी जगह पर क्यों ना आप रहते you हो may be आज, listening to me from any corner today. आज आप किसी भी कोने में से मुझे इस वक्त सुन सकते हो, God cares for you. लेकिन परमेश्वर आपकी चिंता करता God's है। hand is upon you. परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर God है। will not leave you and forsake you. परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा God नहीं। will bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। I want to share with you मैं आपसे बात करना how चाहता to हूँ apply the blood of कि Jesus. किस प्रकार यीशु मसीह का लहू हम उसको Many times लगाए। we are not realizing. कभी कभी हमें एहसास भी नहीं When you होता read New Testament, कि हम नए नियम को पढ़ते there's जब, nowhere it says that you have to apply the blood of Jesus Christ here and there. कि कहीं पर भी बताया नहीं गया कि आपको लहू यहाँ या वहाँ लगाना It है, does not छिड़काना you have to है, keep on sprinkling the blood. कि कहीं पर लिखा नहीं कि लहू के बारे में ऐसे बात करते रहनी We are है। following the tradition of man. हाँ, मनुष्य की जो पद्धति है, परंपरा है, उसके पीछे चलते। I don't read anywhere New Testament then only this scripture. नए नियम में कहीं पर भी, लेकिन ये वचन के अलावा मुझे दिखता नहीं है ये, The Bible says, कि बाइबल कहती है, and Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. कि यीशु मसीह जो नए नियम के अनुसार जो मध्यस्थ है, जो लहू वो बात करता है, यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। Hallelujah. Hallelujah. Book of Hebrews says, इब्रानियों की किताब में He कहा is है a Passover lamb. कि वो हमारा फसह का मेमना है, He is a high priest. वो हमारा महायाजक है, He carried the blood उसने वो लहू लेकर आया and sprinkled on the mercy seat for 7 times. और 7 दफा उसने उस दयासन पर उसको छिड़का, And when he sprinkled on the 7th time, और जब 7 बार उसने उस लहू को छिड़का, He brought forgiveness for us. उसने हम सब के लिए क्षमा ले He आया, brought healing for us. उसने हम सब के लिए चंगाई ले He आया, brought blessing for वो us. सब के लिए आशीष लेकर There आया, are 7 things He brought. 7 बातें वो लेकर आया। Jesus paid the price. यीशु मसीह ने वो कीमत 7 चुकाई, places the blood came out of Him. 7 जगहों से उनके शरीर से लहू आया, For the 7 reason, वो 7 कारणों the के blood लिए of Jesus यीशु मसीह का has लहू, the ingredients that can make the 7th thing happen in your life. उसमें वो 7 गुण है, 7 बातें जो 7 चीजें आपके जीवन में ऐसे कर सकता है। You know, today many people come out with many kind of recipe. आज बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे तर्क लेकर, ऐसे रेसिपी लेकर आते You हैं know, बाहर।
है have this and have that. कि आप ये करो, आप ये खाओ, ये My सेवन friend, करो। praise God for everything. परमेश्वर को धन्यवाद हो हर एक बातों के लिए। Take the Karela juice. आप करेले का जूस Karela लीजिए। has this bitter ingredients. करेले में सारे ऐसे कड़ू बातें हैं, This कड़वे one बातें has हैं। this ingredients. इस चीज में ऐसे ऐसे बातें It's हैं। good for your body. ये बहुत खास है आपके Praise शरीर God के for लिए। everything. परमेश्वर को धन्यवाद ये सारी चीजों के लिए। But let me tell you, लेकिन मैं आपसे कहता blood हूँ, of Jesus have those ingredients यीशु मसीह के लहू में ये सारे गुण और सारी बातें हैं that forgives your sins, जो आपके पापों से माफी that देते heals हैं, you, जो आपको चंगाई देते हैं, that delivers you, जो आपका छुटकारा देते that हैं, blesses जो you. आपको आशीष देते My हैं। friend, मेरे दोस्तों, Blood of Jesus is powerful. यीशु मसीह का लहू सामर्थ्यवान है। Jesus has given his blood, यीशु मसीह ने अपना लहू दिया है and Bible says और बाइबल कहती that है is the only वो केवल एक में है, token for you and me. वो आपके मेरे लिए एक ही चिन्ह How to है। apply the blood? तो हम कैसे लहू लगाएं? Nowhere it says sprinkle. कहीं भी नए नियम में लिखा नहीं है उसको There are छिड़का। many people sprinkle the blood on the road and on the street, on this and on that. बहुत सारे लोग हैं जो लहू रास्ते पर, इस पर या कोई चीजों पर लहू छिड़कते हैं। No, no, my friend, it's नहीं the मेरे। blood of Jesus Christ. It's a holy blood. नहीं मेरे दोस्तों, ऐसे नहीं करना है। वो यीशु मसीह का पवित्र लहू It's है, a precious blood. वो कीमती लहू है। Let me tell you, मुझे आपको कहने दो, Bible says बाइबल कहती है in book of Leviticus 17 chapter 11th verse, लेवियों का 17वां अध्याय और the 11वें life वचन में of flesh is in the blood. कि जो शरीर का जीवन है वो लहू में है। Life of flesh is in the blood. जो मांस शरीर का जीवन है वो लहू में है। Jesus said, unless you eat my flesh and drink my blood, you have no life in me. यीशु मसीह कहते हैं जब तक तुम मेरी मांस नहीं खाते, मेरा लहू नहीं पीते, तब तक तुम्हारे पास मेरे अंदर जीवन नहीं है। The life of dog is in the life of, it's in the blood of dog. वो जो कुत्ते का जो जीवन है वो उसके लहू में है। The life of man मनुष्य का जो जीवन है is in the blood of man. उस मनुष्य के लहू में है। Bible says, बाइबल कहती है to get somebody life, you need blood. कि किसी का जीवन लेने के लिए तुम्हें लहू चाहिए And the life comes from God. और जीवन परमेश्वर से आता है। Let me tell you, मुझे आपको कहने दो, no scientist yet has been able to make one drop of blood. कोई भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं जिसने एक कतरा लहू का बना पाया है। Today even they need blood to give life to others. आज दूसरों को जीवन देने के लिए उन्हें भी लहू की जरूरत My पड़ती है। friend, let me tell you, मेरे दोस्तों आपको there's a बता life दे in दो, the blood. आज उस लहू में जीवन So है। everything has a life of the flesh is in the blood. हर एक जो देह है उसका जीवन उसके लहू में है। The life of Jesus is in life of blood. यीशु मसीह का Hallelujah. जो जीवन है उसका जो जीवन है उसके लहू में है। That's why Jesus said, when you take my blood, you have my life. इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जब तुम मेरा लहू लेते हो तो तुम्हारे पास मेरा And जीवन when है। Jesus said this, और जब यीशु मसीह ने ये it कहा, was very difficult for people to accept it. लोगों को ये स्वीकार करना काफी कठिन लगा। How can it be? ये कैसे हो सकता How है? he's saying? ये कैसे बोल रहे Let me हैं? tell you, मुझे आपको कहने दो, he almost had उन्होंने ये कहा 5,012 people, ये 5,000 लोगों के लिए, more than 5,012 people following him. 5,012 लोग, इनसे ज्यादा लोग उसके And पीछे when चल रहे Jesus थे। said that, और जब यीशु मसीह ने ये बात कही, More than 5,000 followers left him, 5,000 से ज्यादा लोग जो चल रहे थे पीछे वो सारे चले गए and they gave him और उन्होंने ऐसे करके चले No, गए। no, no. नहीं 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 more नहीं। than 5,000 people. 5,000 से ज्यादा लोग, Only 12. केवल 12 ही। Jesus said, और यीशु मसीह ने even कहा if you want to go, you go. अगर तुम 12 को जाना तो तुम भी जा सकते The हो, truth cannot be changed. लेकिन सच्चाई बदल नहीं सकती। You need to preach the truth. तुम्हें सच्चाई का प्रचार करना Whether है, some accept, they don't accept. चाहे कोई स्वीकार करे या नहीं करे। There is a life in God's blood. परमेश्वर के लहू में सामर्थ और जीवन And है। Jesus said it was very difficult to grasp these people. और यीशु मसीह ने कहा कि ये लोगों को ये स्वीकार करना काफी कठिन They could लगा। not comprehend what Jesus was trying to say. जो यीशु मसीह कहने की कोशिश कर रहे थे ये लोग समझ ही नहीं पाए, They could not understand. वो समझ ही नहीं पाए। And Bible says और बाइबल कहती है that life of Jesus was in his blood. और यीशु मसीह का जो जीवन था वो उनके लहू में था। When you are saved, जब आपका उद्धार होता you are है, born again. आपका नया जन्म You होता are है, given the life of God's Son आपको परमेश्वर के पुत्र का जीवन दिया गया through है the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के And the द्वारा। life is flowing in you. अब वो जीवन आपसे बह रहा If you है। are not getting a life of Jesus, अगर आपको यीशु मसीह का जीवन नहीं मिल still रहा there is a doubt about the born again experience. तो फिर आपका नया जन्म का अनुभव उस पर कोई तो शक के We सवाल need to है। have the life of Jesus. हमारे पास यीशु मसीह का जीवन होना Now we है। have to have the life of अब Jesus. हमें यीशु मसीह का जीवन तो होना ही Now है। there are so many attacks that are coming around. ऐसे बहुत सारे हल्ले जो हमारे विरुद्ध आ रहे हैं। How to save ourselves? कैसे हम अपना बचाव How करें, to protect ourselves? कैसे हम संरक्षण करें How to अपना, protect ourselves? कैसे हम अपने आप की हिफाजत Viruses are करें coming. कि ऐसे बीमारियां आ रही Storms are है, coming. ऐसे तूफान आ रहे हैं, Many things are coming. बहुत सारी बातें आ रही Many है। people are prophesying, many more things are coming. बहुत सारे लोगों ने इस बात की भविष्यवाणी की
की बहुत सारी बातें No आएंगी, matter what comes, चाहे कुछ भी क्यों ना आए, God alone is your defender. परमेश्वर अकेला आपको संरक्षण देगा, God alone is your shield. परमेश्वर अकेला आपकी ढाल है। David says, दाऊद कहता है Thou, O Lord, art shield around me. कि तू मेरे लिए, मेरे इर्द गिर्द मेरी ढाल है। God is our shield. परमेश्वर हमारी ढाल And है He's given His blood for the protection. और उसने हिफाजत के लिए अपना लहू दिया Now है। let me tell you one thing. और मुझे एक बात कहने दो आपसे, When God said to Moses जब परमेश्वर ने मूसा से कहा that tell every person कि हर एक व्यक्ति से कहे to slay the lamb in their family, कि अपने घराने में एक मेमने को मार and देना after slaying the lamb, और उसको मारने के He said, बाद sprinkle the blood. तो उसका लहू लेकर वो लहू उंडेलना Now है। let me tell you, मुझे आपको कहने दो if they slay the lamb कि अगर उस मेमने को मारते वो and they take the blood in that vessel और अगर किसी बर्तन में उसका लहू ले लेते and हैं they keep it in the home, और घर में उस बर्तन को लहू से भरकर रख देते yet हैं, there would be attack in that house उसके बावजूद भी उस घर पर हल्ला होगा because the blood is inside. क्योंकि लहू अंदर है, But yet there is attack. लेकिन फिर भी हल्ला होगा। Why? क्यों? Because that blood is not applied on the doorpost. क्योंकि वो जो लहू है उसको लगाया नहीं गया है उस दरवाजे के किनार पट्टियों Bible पर। says apply the blood upon doorpost. कि बाइबल में लिखा है कि वो जो लहू लेना है और उसको किनारों पर लगाना है दरवाजे And when के। you apply the blood upon doorpost, जब दरवाजे के किनार पट्टियों पर आप लहू लगाओगे then the killer will not enter. कि जो नाश करने वाला है वो वहां से प्रवेश अंदर नहीं कर पाएगा। And that blood और वो लहू speaketh. वो बात करता है, Blood speaketh. लहू बात करता है That I died for. कि मैं मरा इनके लिए। It was the blood of lamb. वो मेमने का लहू था, Died for them. उनके लिए मरा। And he said, I died for them. और वो कहता था कि मैं इनके लिए मरा हूँ। And that angel passed by. और वो मौत का दूत है वहां से गुजरता And they were spared. और वो बच जाते। But if there was a blood in the vessel in the home, लेकिन अगर घर में ऐसे बर्तन में वो लहू रखते सिर्फ, yet they would not be saved. तो इसके बावजूद भी वो कभी बच नहीं पाते। God says, परमेश्वर ने कहा take hyssop. कि जुफा लेना, He said, take hyssop, परमेश्वर ने कहा कि जुफा लेना, dip in the blood, उसको लहू में डुबोना and apply it upon the कि doorpost. जो अपने दरवाजे के किनार पट्टियां है उस पर उसको Unless लगाना। with hyssop you apply the blood, कि जब तक आप जुफा लेकर वो लहू को नहीं लगाते इस प्रकार, no guarantee for protection. आपको कोई संरक्षण मिलने की संभावना नहीं In New होगी। Testament, नए नियम that में hyssop is nothing else but our tongue. वो जो जुफा है वो और कुछ नहीं लेकिन हमारी जुबान है। With our tongue we have to apply the blood. हमें जुबान से उस लहू को लगाना है, With tongue we have to confess it. हमें जुबान से कबूल करना Now है। let me tell you, तो मुझे आपको कहने दो, when you read book of Revelation, जब हम प्रकटीकरण की किताब पढ़ते हैं 12th chapter 12वां अध्याय and 11th verse, और 11वां वचन, here he said, वहां पर कहा and है they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their life unto the death. Bible says until death. कि मृत्यु तक, Even the death was before them. कि मृत्यु उनके सामने भी But थी, only one way they came forward. लेकिन एक ही बात से वो आगे बढ़ Only पाए, one way they overcame. एक ही बात से वो विजयी हुए। How did they overcome? कैसे विजय प्राप्ति By की the हुई? blood of the Lamb and the word of their testimony. उस मेमने के लहू से, अपनी गवाही के उन शब्दों से, By the tongue and blood. उस जबान से और उस लहू से, By the hyssop, वो जुफा से, by the hyssop and the blood. उस जुफा से और उस लहू से, There's two things are today. ये दो चीजें आज है। This is more important. ये बहुत महत्व You की and I है। have to overcome. तुम्हें और मुझे विजयवंत होना By है, the tongue and the word of testimony. अपनी जुबान से, अपनी कबूली से और अपनी गवाही से And the blood. और उस लहू से। How can we apply कि blood? कैसे लहू लगाए We हम? don't say I sprinkle blood here and there. हम नहीं कहते कि अब लहू छिड़कते यहाँ Number वहाँ। first, सबसे पहली बात, blood only works in the body. लहू केवल शरीर में कार्य करता When you है। take the blood, जब हम लहू लेते हैं, blood has a life. लहू में जीवन है। Put the blood in the freeze उसको अगर फ्रीज में रखते हैं or freezer. या फिर फ्रीजर में रखते हैं, Blood has life, लहू में जीवन but है, it doesn't work. लेकिन कार्य नहीं करता। Blood anywhere doesn't work. लहू कहीं भी रखो कार्य नहीं करता। But let me tell you, लेकिन मुझे आपसे when कहने the दो, blood goes into body, जब लहू शरीर में आता when है, the blood has put into body, अगर लहू को शरीर में डाल दे it starts working. तो कार्य करने लगता It है, starts flowing. तो बहने लगता It's है, activated in the body. वो कार्यरत होता है शरीर Gives में, life to body. वो शरीर को जीवन देता Exact the way. है। और उसी तरह से The blood of Jesus only works for the body of Jesus. यीशु मसीह का जो लहू है वो यीशु मसीह के देह के लिए कार्य Don't करता है। sprinkle the outside the body. देह के बाहर किसी भी जगह पर उसको छिड़के ना। Unsaved member and this and that and on the road. No.
blood of Jesus is only for the body. कि ऐसे कुछ लोग जिनका उद्धार नहीं हुआ कुछ चीजों पर कुछ वस्तुओं पर नहीं, उसका जो लहू है वो केवल उसके शरीर के लिए है। Only for the body of Jesus. केवल यीशु मसीह के शरीर It के is लिए है। flowing and giving life वो बह रहा है और वो जीवन दे to रहा the है body of Jesus. यीशु मसीह के देह के लिए। Number 2, दूसरी बात, how do we apply? कैसे हम लगाए Bible लहू? says we apply with the confession of our mouth. बाइबल कहते हैं कि हम अपने मुख की कबूली से हम उसको लगाते हैं। With tongue you got to confess. अपने जुबान से हमें कबूल करना है Come against fear. कि जो डर है उसके विरुद्ध आना है। Come against power. जितनी भी सामर्थ्य उसके विरुद्ध Come आना against है। virus. जितनी वायरस है उसके विरुद्ध आना है। Confess with the word. अपने शब्द से कबूल करना Boldly है। declare. धैर्य से उसको कबूल करना Hey, है। let me tell you one thing. मुझे आपको एक बात कहने When दो। God said to apply the blood in Egypt जब परमेश्वर ने कहा कि मिस्र में रहकर आपको इस प्रकार लहू लगाना to the है, Israel's home, इसराइल के घराने पर The ऐसा लहू Israelites were लगाना not है perfect. कि इसराइल जितने भी परिपूर्ण नहीं they है, were not ये perfect. परिपूर्ण नहीं थे That God could save कि them. परमेश्वर उनको बचा लेगा But ऐसे। the blood protected them. लेकिन वो लहू है जिसने उनको हिफाजत दी। Let me tell you, my friend, मुझे आपको कहने दो, Satan will attack you. शैतान आप पर हल्ला Maybe I करेगा। am not perfect. शायद आप परिपूर्ण Maybe नहीं I वैसे am not बताएगा, like this and शायद that. मैं ऐसा वैसा But नहीं today हूँ। come against every thought. लेकिन हर एक विचार के विरुद्ध आज खड़े हो Stand with the जाओ promise of और God परमेश्वर के अभिवचन को लेकर and खड़े हो said, I जाओ am और healed. बोलो कि मैं चंगा हूँ। Because the Bible क्योंकि says, बाइबल कहती our है mediator in the heaven, कि हमारा जो मध्यस्थ स्वर्ग में he is interceding for वो us. हमारे लिए प्रार्थना और मध्यस्थी कर रहा And है। what the blood says, और जो लहू कहता है, Bible says, बाइबल कहती let है nobody move with what blood says. कि कोई भी उसको रद्द न करे जो लहू कहता है। What blood speaks, जो लहू बोलता है that we need to confess it. वही हमें आज कबूल करना Blood है। says, लहू we कहता are है forgiven. कि हमें क्षमा मिली Blood है। says, लहू कहता we are है healed. हमें चंगाई मिली है। Blood says, लहू कहता we है are blessed. हम आशीषित है। Blood says, लहू कहता we are है delivered. कि हमें छुटकारा मिला Confess है। what blood says. आज जो लहू कहता है उसको घोषित करे। Bible says, by the confession. बाइबल कहते हैं कि कबूली से। 1 John 1:9 says, पहला यूहन्ना इसका पहला when you अध्याय 9वां confess वचन, with your tongue जब अपनी जुबान से आप कबूल करते हो that your sins, कि आपके जो पाप है, when you confess with your, जब अपनी जुबान से कबूल करते हो अपने the blood पापों of की, Jesus cleanses you. यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करता है। When we confess, जब हम कबूल करते what do हैं, we confess? क्या कबूल करते We हैं? confess हम कबूल the करते blood हैं of Jesus cleanses us from all the कि sins. यीशु मसीह का लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता When you है। confess, then you are forgiven. जब हम कबूल करते हैं तब हमें क्षमा प्राप्ति होती है। Confess the blood of Jesus. इसलिए कबूल करें यीशु मसीह का लहू। Confess the blood of Jesus. कबूल करें यीशु मसीह का When you लहू। confess, God will forgive you. जब आप कबूल करोगे तो परमेश्वर तब जाकर आपको क्षमा You करेगा। got to confess. हमें कबूल करना You got to है। confess again your fear. हमें अपने डर के विरुद्ध आकर कबूल Which करना door है। is Satan is trying to come? कौन सा द्वार जिसके द्वारा शैतान आना Shut चाहता that है, door. उस दरवाजे को बंद Apply करो। that door. वहां पर लहू लगाओ। Promise of God you need to take. प्रभु परमेश्वर का जो अभिवचन है उसको लेना है। When you speak the word, जब आप शब्द बोलते हो the blood of Jesus stands there. कि यीशु मसीह का लहू वहां खड़ा हो जाता Jesus है। says, यीशु मसीह word कहते that हैं I speak unto you is a spirit and the life. कि जो शब्द जो वचन में बोलता हो वो और कुछ नहीं लेकिन आत्मा और जीवन है। And Bible says the life is in the और blood. बाइबल कहते हैं कि जीवन वो लहू में है। And Jesus said, my word are the life. और यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जो वचन है वो जीवन है। So in this world, तो इस वचन में Bible says, बाइबल कहती है there is a hyssop that given to you. कि वहां पर ऐसा जुफा है जो आपको दिया गया That है, is your tongue. वो आपकी ज़बान है। It is insignificant. ये शायद से इतनी महत्व की बात नहीं नजर But आती, let me tell you, लेकिन आपसे कहता हूं can मैं, do great work. लेकिन वो महान कार्य कर सकती Confess है। it today. इसलिए आज उसकी कबूली Overcome every करें, situation. हर एक हालात पर विजयी हो Confess it जाइए and you'll overcome. और कबूल करें और आप विजयी हो जाओगे। Confess it. कबूल करो। Download the password of confession. उस कबूली का पासवर्ड उसे डाउनलोड करें। If you are fallen in sin, confess it. अगर आप पाप में गिरे हो तो कबूल करो उसे। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. There are 4 kinds of confession. 4 प्रकार की कबूलियां हैं। One confession to get saved. एक कबूली उद्धार प्राप्त करने के लिए, Second confession, दूसरी कबूली forgiveness of sin. पापों की क्षमा प्राप्त करने के Third लिए, confession तीसरी कबूली is taking the communion. कि प्रभु भोजन में हिस्सा लेने And के fourth लिए, confession और चौथी कबूली is taking a position. कि अपनी जगह लेने के We लिए। might go some other time these 4 confessions. किसी और दिन हम इन 4 कबूलियों से जाएंगे, But today I सीखेंगे। want to tell you, लेकिन आज मैं आपसे कहना confession चाहता to हूँ take the position. कि कबूली करने ये Don't अपनी let जगह लेने Satan के attack you. लिए शैतान को हल्ला करने ना Confession to दीजिए। take the position. आज वो जगह लेने के लिए कबूली करें। Suppose you are sitting in the plane सोचो आप एक जहाज में, हवाई जहाज में and there are बैठे so हो many air pockets और ऐसे बहुत सारे एयर पॉकेट्स हैं and so many air turbulence you go और through हवाई ऐसे असमंताएं और ऐसे मुसीबतें तकलीफें आ रही है and there's आपको, trouble. और जहाँ पर ऐसी तकलीफ आ रही Now है
the plane is going to move. अब जो हवाई जहाज है वो डगमगाएगा। They ask you, वो आपको पूछते हैं, tighten your seat belt. जो आपने जो कमर पेटी है उसको कस के बांधिए। Tighten your seat जो आपकी belt. जो कमर पेटी है उसको कस के बांधिए। When you tighten your seat belt, जब आप सीट बेल्ट उसको no बांधते matter हो, what happens, चाहे कुछ भी हो, you are hooked inside. आपको वहां पर बांध will कर not fall. रखा है, आप गिरोगे You will नहीं, not go anywhere. आप यहाँ वहां नहीं No matter what डगमगाओगे, storm comes, चाहे कितना भी तूफान you are आए, well tied. आपको बांधा गया है Hold सही। fast your confession. इसलिए अपनी कबूली No को matter पकड़े what रखो, storm comes, चाहे कोई भी no matter तूफान what क्यों ना power आए, comes, चाहे कोई भी no सामर्थ matter क्यों what ना है, surrounding, चाहे कैसे भी you are gonna हालात, live today तुमको बताना है in आज such a situation, कि ऐसे हालात in में, such a time, ऐसे समय is में something that can save अगर us. कोई बात जो हमें बचा सकती है, It's the word of our testimony and the blood of the Lamb. वो हमारे गवाही का शब्द है और वो मेमने का लहू है। I tell you today, मैं आपको आज कहता हूँ, situation is becoming worse. हालात बदतर हो रही When है। you look at around, जब सब जगह पर देखते हो, situation is becoming worse. हालात बदतर हो रही But है, God has given you. लेकिन परमेश्वर ने आपको दिया God है, has spared you. परमेश्वर ने आपको बचाया God है, has not let you die. परमेश्वर ने आपको मरने नहीं दिया, God has protected you. परमेश्वर ने आपको संरक्षण दिया God has है, given you token. परमेश्वर ने आपको चिन्ह दिया Speak the है। promise of God. परमेश्वर के अभिवचन बोलो, Speak the promise of God परमेश्वर upon के your अभिवचन children. बोलो अपने बच्चों के लिए। Apply the वो blood. लहू लगाओ Me and my वहाँ household is कि saved. मैं और मेरा घराना इनका उद्धार हो गया है, I'm blessed. कि मैं आशीषित हूँ, My going out is the blessed. My coming in is the मेरा blessed. बाहर जाना मेरा अंदर आना No आशीषित है, virus can attack कोई me. वायरस हल्ला नहीं कर I'm blessed by सकता, God. मैं परमेश्वर से आशीषित I'm हूँ, redeemed. मैं छुटकारा प्राप्त किया गया हूँ। Book of Ephesians. इफिसियों की किताब First chapter 7th verse says, पहला अध्याय 7वां वचन I'm कहता redeemed by है, the blood of the मैं Lamb. मेमने के लहू से छुटकारा प्राप्त किया गया Psalm हूँ। says, भजन संहिता कहता let the है redeemer of the Lord say so. कि परमेश्वर से छुड़ाए गए हैं वे ऐसे बोले I'm redeemed, says the कि मैं Lord. छुटकारा प्राप्त किया गया हूँ, छुटकारा प्राप्त किया गया हूँ, परमेश्वर को स्तुति हो। Romans 5:9 says, रोमियो उसका 5वां अध्याय 9वां वचन कहता there is a है justification by the blood of Jesus. कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें न्याय ठहराया I'm गया है, justified by the blood of कि Jesus. मुझे यीशु मसीह के लहू से न्याय और सिद्ध You are ठहराया गया है, justified by the blood of आपको Jesus. सिद्ध ठहराया गया है यीशु मसीह के लहू Hebrews से। 10 says, इब्रानियों इसका you are वचन cleansed by the blood of Jesus. You are sanctified by the blood of कि Jesus. आपका शुद्धिकरण यीशु मसीह के लहू से किया गया Let me है। tell you, my friend, मुझे आपको कहने दो blood of दोस्तों, Jesus was not shed in vain. यीशु मसीह का लहू व्यर्थ के लिए नहीं बहाया It was गया, not only forgiven, वो बस क्षमा के लिए नहीं, but it was for a healing. लेकिन चंगाई के लिए था, For it वो was a protection. वो संरक्षण के लिए था। Blood of Jesus यीशु मसीह का लहू forgives you, वो आपको क्षमा करता heals है, you, को चंगाई देता है, protects you, आपका संरक्षण करता है gives you life. और आपको जीवन देता Once है। again, I tell फिर you, एक बार कहता हूं मैं, the blood of Jesus यीशु मसीह का लहू forgives you from all the sin. आपको हर एक पापों से छुटकारा देता है। Hallelujah. हालेलुया। Heals you वो आपको चंगाई देता from है all your sicknesses. आपके हर एक बीमारियों से। Number 3, तीसरी बात, protects you आपको संरक्षण देता है from all that is coming around. हर एक बात जो आपके विरुद्ध यहाँ आ रही है। Number 4, और चौथी बात, gives you life. आपको जीवन देता है। Life of Jesus. यीशु मसीह का It's not जीवन in your blood, in blood of Christ. वो आपके लहू में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के लहू Today, में है। hold fast. आज उसको पकड़े You रखो। are the child of God. आप परमेश्वर के संतान You हो, are the son of आप God. परमेश्वर के पुत्र You हो, have the blood of Jesus in you. आपके अंदर यीशु मसीह का लहू है। Confess it. आज कबूली करे उसकी, Confess it. आज कबूली करे Every उसकी, morning. हर एक सुबह। Bible says, बाइबल कहती है, book of Job was the first book in Bible. अय्यूब की किताब सबसे पहली किताब थी But बाइबल में, even you find, लेकिन हम उसमें भी देख सकते every हैं morning, कि हर सुबह, Job was slaying lamb for every son. हर एक दिन अय्यूब जो है अर्पण कर रहा था, हर एक मेमना For बार रहा था। every son he was making one sacrifice अपने हर एक पुत्र के लिए वो एक एक कुर्बानी दे रहा था, हर एक मेमने की, for the protection. उनके बच्चे की It हिफाजत was के लिए, before even the law that was given. कि जितने नियम आए उसके पहले से ये सब कर रहा था। वो Blood protects you. जो लहू है वो संरक्षण और हिफाजत करता Confess है, it. इसलिए कबूल करे My उसे। friend. मेरे दोस्तों, Confess it. कबूल करे। Many people कई लोग just apply the blood. वो बस ऐसे लहू लगाते They हैं, just don't know. उन्हें पता ही नहीं Apply है। the blood. मैं लहू लगाता My हूँ, husband is going out, I apply the मेरा पति blood. बाहर जा रहा है, मैं I'm लहू going to लगाती apply हूँ, the blood on the car. मैं कार पे लगाता Apply the हूँ, blood of Jesus Christ. लहू यहाँ पर लगाता You know, my हूँ। friend, मेरे दोस्तों, how the blood works? लहू कैसे कार्य Blood करता works है? in the confession of God's word. लहू कार्य करता है परमेश्वर के वचन की कबूली Today में। in New Testament, आज नए नियम में God works in the confession of His word. परमेश्वर अपने शब्द के अपने वचन के कबूली में कार्य करता You है। take the promise. तुम वो अभिवचन लो। You know, the hunter when he goes, जो शिकारी जब जाता है he has a शिकार करने, he has a quiver. कि उसके पास सारे तीर एक जगह पर ऐसे लटकाए रखे In होते the हैं। quiver, उस क्वीवर में they can keep 5 arrows. उसके अंदर 5 तीर रख सकते हैं हम। You know, my friend, मेरे दोस्तों, for every problem, take 5
promise of God. हर एक समस्या के लिए परमेश्वर के 5 अभिवचन लेकर You can चलो। attack Satan by God's word. आप शैतान पर हल्ला कर सकते हो परमेश्वर के वचन When से। Satan tried to attack Jesus, जब शैतान ने यीशु मसीह पर हल्ला करने की कोशिश Jesus की, did nothing but he spoke the word यीशु मसीह ने और कुछ नहीं किया लेकिन शब्द वचन बोला and he flee away. और शैतान वहां से दौड़ He निकला। said, take this stone and make it bread. उसने कहा कि ये पत्थर ले लो और उसकी रोटी बना लो। Jesus says, यीशु मसीह ने from कहा, book of Deuteronomy, it is written. अनुवाद के अध्याय में वहां पर लिखा है, It is written. वहां पर ऐसे लिखा है, And he flee away. और शैतान वहां से भाग निकला। Then he says, और फिर वो कहता it है is written. कि वैसे लिखा है Jump from above. कि ऊपर से कूद लेना। Jesus says, और यीशु मसीह ने it is कहा, also written. और ऐसा भी लिखा है। You know, my friend, मेरे दोस्तों, Jesus had word. यीशु मसीह के पास वचन था। Today you need to have word. आज तुम्हें भी वचन की जरूरत You want है। to stop virus, you have to have word. अगर आपको वायरस को रोकना है तो आपके पास वचन You होना have to चाहिए। take promise. आपको अभिवचन For लेना है। every situation, take 5 हर promises. एक समस्या के लिए 5 अभिवचन And keep लेना on confessing. और कबूल करते रहना। And your confession is your और position. आपका जो कबूली है वही आपका स्थान है And you will overcome. और आप विजयवंत हो My जाओगे। friend, मेरे every दोस्तों, morning get up. हर एक सुबह उठ जाओ Confess it. और कबूल करो Every उसे। situation, confess हर it. एक परिस्थिति में कबूल Don't करो confess उसे। problem, confess promise. जो परिस्थिति उसको कबूल ना करो लेकिन परमेश्वर के अभिवचनों की And when कबूली you करो। confess promise, और जब आप अभिवचन कबूल करोगे, God is faithful to fulfill His promise. परमेश्वर विश्वासी है उसको पूरा करने के लिए। Apply the blood उस लहू को लगाओ by confession. अपने कबूली से। Bible says बाइबल कहती they है overcame कि उन्होंने वो विजयी हुए by the word of their testimony and the blood of the Lamb. अपने गवाही के शब्दों से और उसमें May you and your family overcome कि आपका और आपका परिवार विजयवंत हो by the word of your testimony आपके जो गवाही है उसके वचनों and से the blood of the Lamb. और मेमने के उस लहू से Apply the blood today. वो लहू लगाओ And आज I'm sure और मुझे यकीन है blood will do His work. लहू ही वो अपना कार्य That's करेगा। only one, वो केवल एक ही है, only one token God is वो given. केवल एकमात्र एक चिन्ह परमेश्वर ने जो दिया His है blood. वो लहू है। Jesus says, यीशु मसीह कहते unless हैं unless you eat my flesh and drink my blood, you have no life in me. जब तक आप मेरे मांस को नहीं खाते, जब तक आप मेरा लहू नहीं पीते, When तब तक जीवन नहीं है When He आपको। broke the bread, जब उसने वो रोटी को तोड़ा, He said, उसने कहा eat, this is my flesh and this is my blood. ये मेरा देह है और ये मेरा लहू है। He gave the cup, He said, this is my blood. उसने वो प्याला दिया और कहा कि ये मेरा लहू है। Let me tell you, my friend, मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, we need to have the life of God. आज हमारे पास हमारे में परमेश्वर का When you जीवन have होना life है। of God, हमारे पास परमेश्वर का जीवन जब होगा you have abundance. तब आपके पास भरपूर और बहुत When you आयत have में life है। of God, जब परमेश्वर का जीवन होता है nothing will affect you. कोई भी बात से हम हावी नहीं होंगे। God will protect you. परमेश्वर हमारा संरक्षण God will करेगा, bless you. परमेश्वर आशीषित Today करेगा। with the hyssop, आज उस जुफा with के the साथ hyssop, apply the blood उस जुफा को लेकर आप उस लहू को लगाओ and God will protect और you. परमेश्वर आपको संरक्षण That's the देगा। only protection for you. केवल एक ही संरक्षण परमेश्वर से हमें है ये। God bless you. और परमेश्वर आपको Let us आशीष prepare our करे। heart for the communion. आओ हम अपने हृदय की तैयारी करें प्रभु भोजन के And लिए। Lord और would परमेश्वर bless you. आप सबको I आशीषित pray करे। मैं प्रार्थना That करता may you हूँ understand this कि आपको message. ये प्रचार समझ आए, May you understand how to apply the कि blood. आपको समझ आए कि लहू कैसे लगाए। Only blood, but let me tell you, केवल लहू लहू, लेकिन एक बात बताता blood हूँ, is life. लहू जीवन है, Blood is life. लहू जीवन है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus' blood यीशु मसीह का लहू works according to His word. उसके वचन के अनुसार कार्य करता है। Let's come आओ हम आए and receive the blessing. और आशीषों को स्वीकार करें। Hallelujah. हालेलुया। भवन के बीच में तू कहता है
सकेगा मेरा सामना, बीमारी पे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस न चल सका, ऐसा कोई शस्त्र न बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए बालों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। यावेळेस आपण प्रभू भोजनाच्या विधीकडे येऊया. Let us come to the communion table. पहिले करंथीकरास पत्र याचा 11वा अध्याय आणि 23 वचनापासून आपण वाचूया. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 onwards. कारण जे मला प्रभूपासून मिळाले तेच मी तुम्हाला सांगितले आहे की ज्या रात्री प्रभू येशूला धरून देण्यात आले त्या रात्री त्यांनी भाकर घेतली, आभार मानून ती मोडली आणि म्हटले, हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी आहे, माझ्या स्मरणात हे करा. मग भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेऊन तसेच केले आणि म्हटले, हा प्याला माझ्या रक्ताने झालेला नवा करार आहे. जितक्यांदा तुम्ही हा पिता तितक्यांदा माझ्या स्मरणात हे करा. कारण जितक्यांदा तुम्ही ही भाकर खाता व हा प्याला पिता तितक्यांदा तुम्ही प्रभूच्या मरणाची तो येईपर्यंत घोषणा करीता. म्हणून जो कोणी अयोग्य प्रकारे ही भाकर खाईल अथवा प्रभूचा प्याला पेल तो प्रभूचे शरीर व रक्त या संबंधाने दोषी ठरेल. म्हणून माणसाने आत्मपरीक्षण करावे आणि मग त्या भाकरीतून खावे व त्या प्याल्यातून प्यावे. कारण त्या शरीराचे मर्म ओळखिल्याशिवाय जो खातो व पितो तो खाण्याने व पिण्याने आपणावर दंड ओढून घेतो. तुम्हामध्ये पुष्कळ जण दुर्बळ आजारी आहेत आणि बरेच निद्रेत आहेत. याचे कारण हेच, आपण आपला न्याय निवाळा केला असता तर आपल्यावर दंड ओढवला नसता. ज्या अर्थी आपल्यावर दंड ओढवला आहे त्या अर्थी आपल्याला प्रभूकडून शिक्षा होत आहे, अशा हेतून की जगाबरोबर आपल्याला दंड आज्ञा होऊ नये. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus the same night which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do show the Lord's death till he comes. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, and we should not be condemned with the world. आपण प्रार्थना करूया. Let us pray. इस्रायलाच्या पवित्र पवित्र आणि पवित्र देवा, Holy God of Israel, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने in Jesus' name, या रविवारच्या सकाळी पुन्हा एकदा आम्ही तुझ्या पवित्र चरणी येतो we come to your holy presence in this Sunday morning, आणि आम्ही हृदयापासून तुला धन्यवाद देतो. and we thank you with all of our आजच heart, तुझं वचन आम्ही ऐकलं as we've heard your word today, की या भाकरीत आणि या प्याल्यामध्ये जीवन आणि विपुल जीवन आहे. that there is life and life abundant in this bread and in this wine. जे ख्रिस्तानी आम्हासाठी वधस्तंभावर हे भाकर आणि हा प्याला त्यांनी आम्हाला दिलेला आहे. That Jesus, your son, gave this life, this bread and this wine on the cross of Calvary. आम्ही धन्यवाद करतो या भाकरीसाठी
We thank you for this bread, O Lord, आम्ही धन्यवाद करतो या प्याल्यासाठी and we thank you for this wine, O Lord, जो येशूचं शरीर आणि येशूचं रक्त आहे. which is the body of Christ and the blood of आम्ही Christ. मागतो प्रभू देवा, We ask from you, Lord, तुझ्या पवित्र रक्ताने that by your precious and holy तू blood, आमच्या सर्व चुका, अपराध आणि पापांची क्षमा केलेली आहे. forgive us for all our sins and for our transgressions. यावेळेस आम्ही पश्चाताप करून तुझ्या पुढे आलेलो We आहोत. repented and we have come in front of हे you, भाकर Lord, आणि हा प्याला घेण्यासाठी that we can partake in this bread and in this हे wine. परमेश्वरा, O Lord, ही भाकर आणि हा प्याला that this bread and wine, आमच्यासाठी, let it be, Lord, मंडळीसाठी, and for this church and आमच्या for us, कुटुंबासाठी and for our entire family, आशीर्वादित कर या let सकाळी. it be a blessing for आम्ही all of धन्यवाद us. करतो. We thank you, O प्रभू Lord, येशू ख्रिस्ताच्या नावाने प्रार्थना and करतो. in Jesus' name we pray. आमेन. Amen. ख्रिस्ताचं शरीर 2000 वर्षापूर्वी तुमच्या आणि माझ्यासाठी मोडण्यात आलेलं आहे. The body of Christ broken for you and me 2000 years ago. ख्रिस्ताचं रक्त 2000 वर्षापूर्वी तुमच्या आणि माझ्यासाठी देण्यात आलेलं आहे. And the blood of Christ that was shed 2000 years ago for you and me. येशूच्या नावाने हे भाकर आणि प्याला यावेळेस आपण घेऊया. And let us partake in this bread and this wine in Jesus' name. यावेळेस आपण सर्वजण भाकर आणि प्याला घेऊया. Let us participate in this bread and this wine. जर यावेळेस आपण भाकर आणि प्याला घेतला असेल, If we have already participated in the bread and the wine, यावेळेस आपण प्रार्थना करूया. let us bow our heads and pray. परमेश्वरा, पुन्हा एकदा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने Once again, O Lord, in the name of Jesus, आम्ही तुझ्या समोर येतो. we come in thy presence in front of you, आजच्या चर्चसाठी आम्ही धन्यवाद करतो. and we thank you for this church service today. विशेष आम्ही आमचे पास्टर, Especially, Lord, we thank for our त्यांच्या pastor, कुटुंबासाठी धन्यवाद करतो. and we thank you, Lord, for his family. आजच्या वचनासाठी धन्यवाद We करतो. thank you, Lord, for the word today. हे परमेश्वरा, तुझ्या रक्तासाठी आम्ही धन्यवाद करतो. Lord, we thank you for your blood. हे परमेश्वरा, आम्ही प्रार्थना करतो. And Lord, we pray येशूच्या नावाने in the name of या Jesus, महिन्याचा हा शेवटचा रविवार, the last Sunday of this month, प्रभू पूर्ण महिनाभर तू आम्हाला सांभाळलंस. that you have protected us the entire month, Lord. सर्व पूर्ण महिन्याभराचे सर्व वचन तू आम्हासाठी आशीर्वादित केलेस. And all the words and all the preaching, Lord, you made it a blessing for all of us, O Lord. सर्व संदेश आम्हासाठी तू आशीर्वादित केले. And all the preaching that we've heard in this month, you made it a blessing for all of प्रार्थना us. करतो आम्ही परमेश्वरा, We pray, O Lord, धन्यवादाचा अर्पण तुझ्या पुढे आणतो. we give you an offering of thanksgiving, O पूर्ण Lord. जुलै महिन्यासाठी And we thank you for the entire month of July. आम्ही तुला धन्यवाद करतो Thank you, Lord, for की this. तू आम्हाला, That you, O आमच्या Lord, कुटुंबाला, and for us and our आमच्या family, मंडळीला, and for our church, सर्वांना सांभाळलं. that you have taken care of all विशेष of आम्ही us. धन्यवाद करतो पास्टरसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी. Especially we thank you, Lord, for pastor and the entire family. आम्ही मागतो तुझा हात त्यांच्यावर असू दे, And we pray, O Lord, let your hand be upon them. वहिनीवर असू दे, Let your hand be upon his wife. तबिता आणि ओबेदवर And असू let your दे. hand be upon Tabitha and Obed, O Lord. त्यांच्या गरजाप्रमाणे तुझा हात त्यांच्यावर असू दे. And let your hand be according to their needs, O Lord. सर्व मंडळीवर तुझा हात असू दे. Let your hand be upon the entire church, Lord. आणि जे लोक पुण्याच्या बाहेर आहेत त्यांच्यावर सुद्धा तुझा हात असू And दे. for all the people, Lord, who are outside of Pune, Lord, let your hand be upon all of them as well. आणि येणारा सप्ताह आणि येणारा महिना पण तू आपल्या हाती घे. And the coming week and the coming month, we give it into your hands, O तुझा Lord. हात असू दे. Let your hand be on. देवा, जे आजारी आहेत त्यांना आरोग्य दे. Lord, heal the people who are sick, जे Lord. बंधनात आहेत त्यांना सुटका दे. Lord, free the people who are जे in the गरजेत आहे bondage. त्यांची गरज पूर्ण कर. Lord, fulfill the needs of the प्रत्येकाच्या people. गरजानुसार तुझा हात सर्वांवर Let असू your दे. hand be upon all of people, Lord Master, as per their needs आणि and their सर्वांना requirements. तुझ्यामध्ये सुरक्षित ठेव. And let each and every person be safe in your presence. विश्वासाने आम्ही प्रार्थना Lord, करतो we pray this by faith. आणि धन्यवाद And करतो. we thank you, O Lord. ख्रिस्ताची शांती Let the peace of Jesus Christ आणि येशू ख्रिस्ताची कृपा and the grace and mercy of Jesus तुम्हा Christ, सर्वांबरोबर या सप्त्यामध्ये पण असो. let it be the entire week on all of us in this प्रभू week. येशू ख्रिस्ताच्या नावाने आम्ही प्रार्थना And करतो. in Jesus' name we pray. आमेन. Amen.
परमेश्वर तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वाद देव May God bless each one व of you तुमचे संरक्षण करो. and may He protect you. परमेश्वर आपला मुख प्रकाश तुम्हावर पाडो May His light shine upon your व face तुमच्यावर कृपा करो. and may He be gracious on you. परमेश्वर आपला प्रसन्न मुख तुम्हाकडे करो May His light shine upon व your तुम्हा face शांती देव. and may He give you the peace. इस्रायलाचा यावे देव तुम्हाला आशीर्वाद देव. May Jehovah God of Israel give you peace. या यावे देवाच्या नावाने हे सर्व आशीर्वाद मी तुम्हावर आणि मंडळीवर मुद्रित करतो. And by the name of Jehovah Lord, I confess and I seal these blessings on you and your entire family. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने And in Jesus' name we pray. आमेन. Amen. आणि सर्वांना म्हणतो शालोम. Shalom. ख्रिस्ताची शांती तुम्हा बरोबर असो. May peace of Christ be with you.